اس سے پہلے کہ میں خدا ان کے خادم کو دعوت دوں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہماری منسٹری کی کافی ساری برانچز ہیں. کچھ برانچز کا آپ کو علم بھی ہے، جیسے شاہدرہ جہاں پہ آج بپتسموں کا پروگرام ہے، اور اس کے ساتھ ایک دوسری برانچ جو باہن آباد، جسے برہن آباد یا بہن آباد کہتے ہیں، جلو موڑ کے نزدیک ہے. اور آج کے پیغمبر جو ہیں وہ ہمارے وہاں سے آئے ہیں. ہم زوردار تالیوں میں پاسٹر آصف کو بہن آباد سے جو آئے ہیں زوردار تالیوں میں ویلکم کریں گے. خدا ان کے کلام کے لیے ہمارے درمیان شیئر کریں گے. زوردار تالیاں بجائیں خدا ان کے کلام کے لیے، خدا ان کے بندہ کے لیے. ہیلو. سی یسو کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. تھینک یو. کتنے خوش ہیں؟ ہاللیلویا. کتنے خوش ہیں؟ ہاللیلویا. ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے، اور میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں آج کے دن کے لیے کہ خدا نے ہم سب کی زندگی کے اندر یہ موقع بخشا کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں. میں نہایت شکر گزار ہوں اپنے سینئر پاسٹر کا. یہ میرے نہ صرف ایک ٹیچر ہیں بلکہ جو میرے اسپرچل فادر تھے، ان کے چھوڑنے کے بعد انہوں نے مجھے کمانڈ کیا ہے، اور بے شمار چیزوں میں ان سے گائیڈنس لیتا ہوں، رہنمائی لیتا ہوں. بے شک یہ جگہ جو ہے میری نظر میں جو ہے وہ ایک چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن بھائی صاحب کی ایک بات ہے کہ وہ لیڈرز تیار کرتے ہیں. ہاللیلویا. وہ لیڈروں کو اکوپ کرتے ہیں. میں جو ہے نا وہ بڑی مشکل کے اندر تھا جب میں خدمت میں آیا. 2010 میں نے خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ شخصی طور پر قبول کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میری زندگی کے اندر بے شمار نشیب و فراز آئے، مشکلات آئی، اور لیکن میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اور بھائی صاحب جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے مجھے اکوپ کیا کہ آپ آگے بڑھو اور خدا کے نام کو عزت اور جلال. اور میں واگا بارڈر والی سائڈ سے جو ہے وہ بلونگ کرتا ہوں. بیسیکلی وہ گاؤں کہلاتا ہے، لیکن ہارون بھائی اور بھائی صاحب اور بوا جی نے اکثر دیکھا ہوا کہ وہ گاؤں نہیں ہے. ہاللیلویا. وہ گاؤں نہیں ہے، کسی شہر سے کم بھی نہیں ہے. تو خداوند کا شکر ہے کہ میں ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ خدمت کے اندر ہوں، اور آج آہستہ آہستہ جو ہے ہم خدمت کے اندر بڑھ رہے ہیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں. ہاللیلویا. اس سے پہلے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، خدا کے حضوری کو محسوس کریں، اور ایک بار پھر ہم خدا کی آواز کو کہیں گے کہ خدا آج کا کلام جو ہے وہ میرے لیے ہو، تاکہ میں آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پاؤں. پریز ہاللیلویا. تھینک یو لارڈ. خدا پاک خدا تیرا شکر ہو خدا آج کے کلام کے لیے، خدا اس جگہ کے لیے. خدا یہ کوئی حادثاتی طور نہیں ہے خدا، تو خدا مجھے جان بوجھ کر یہاں پہ لے کر آیا خدا، تاکہ خدا ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دیں. خدا ہو سکتا ہے کسی کو نجات کی، بحالی کی اور خدا شفا کی ضرورت ہو، تیرا نام عزت اور جلال پائے مسیح یسوع کے نام سے آمین. کل شام کو بھائی صاحب نے مجھے فون کیا کہ آپ نے چرچ آنا ہے اور آپ نے کلام وہاں پہ شیئر کرنا ہے. اور میری بھتیجی جو ہے وہ چارپائی پہ بیٹھی ہارمونیم بجا رہی تھی، اور مجھے کہتی کہ میں نے کہا کہ اتنی جلدی میں کیسے پریپیئر کروں گا اپنے آپ کو کلامی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے، میں کس طرح تیار کروں گا اپنے. تو وہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب سے کہو کہ میں بزی ہوں، میں اگلے سنڈے آ جاؤں گا. میں نے کہا نہیں، یہ خدا کی مرضی ہے. جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو یقیناً خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پاتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں. اور آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے یرمیہ کی کتاب. سب میرے ساتھ کھولیں گے یرمیہ نبی کی کتاب، اور اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک. اگر کوئی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے تو ضرور کرے. جی جی. یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا تو خداوند کے گھر کے پھاٹک پر کھڑا ہو اور وہاں اس کلام کا اشتہار دے اور کہہ، اے یہودا کے سب
आमीन। सब कहें आमीन। आज का कलाम जो है, ये कलाम जो है बेसिकली बनी इसराइल कौम के लिए था कि खुदा ने बनी इसराइल के साथ यिर्मयाह नबी की मार्फत कलाम किया, और कलाम के अंदर लिखा है कि ये वो कलाम है जो यिर्मयाह की मार्फत जो है, यिर्मयाह की वसादत से है, बनी इसराइल तक पहुंचता है। और कलाम के अंदर क्या लिखा है कि खुदा उसको कहता है कि हैकल जो है उसके फाटक पर खड़ा हो, यानी हैकल के दरवाजे पर खड़ा हो और लोगों को ऐलान कर दे कि अपनी रवशियां और अपने अमाल जो है वो क्या करो, दुरुस्त करो, अपनी जिंदगी को जो है वो दुरुस्त करो। क्योंकि यिर्मयाह नबी जो है वो नबी है जिसको वेलिंग प्रॉफिट कहा जाता है, जिसको वीपिंग प्रॉफिट कहा जाता है, कि अपनी कौम के लिए बड़ा दर्द रखता था और बार बार खुदा उसको कलाम करता है। लिखा है कि ये वो कलाम है जो यिर्मयाह पर नाज़िल होता है, और यिर्मयाह नबी वो है जो नासे है, जो अपनी कौम के लिए जो है वो बड़ा दर्द रखता है और कहता है खुदावन मैं नहीं खुदावन, तू इस कौम के जरिए खुदा मेरे जरिए से बोल खुदावंदा। और खुदा जब बोलता है तो लोग जो है वो बुजुर्ग यिर्मयाह की बात नहीं सुनते। याद रखें, इससे पहले भी यिर्मयाह ने ये कहा था कि खुदावन ये लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि मैं बच्चा हूं, लेकिन खुदा ने उसके साथ वादा किया कि ये तेरी सुनेंगे, तेरी आवाज को सुनेंगे, लेकिन तू हैकल के फाटक के पास जा और वहां पर जो है इस कलाम का इश्तिहार दे, अपने माल को और अपनी रवशों को दुरुस्त करो। और यिर्मयाह क्या करता है, कभी इस फाटक पर, कभी कोने पर, कभी किस चौराहे पर, कभी कहीं खड़ा होता है और लोगों से कहता है कि खुदा कलाम कर रहा है, खुदा कहता है बाबुल आने वाला है, खुदा कहता है असीरी आने वाले हैं, खुदा कहता है तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। लेकिन कलाम के अंदर लिखा कि वो लोग उसकी सुनते नहीं और मजाक उठाते हैं उसका। कलाम के अंदर लिखा है कि लोग जो है वो उसका मजाक इस कदर उड़ाते हैं कि उसको ठट्ठे करते हैं, उसकी जो है वो तजलील करते हैं। लिखा है, जब हम इसकी चौथी आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि झूठी बातों पर भरोसा ना करो और यूं ना कहते जाओ कि ये है खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल। 3 मर्तबा खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल का लफ्ज क्यों आया है? क्योंकि 3 का अदद जो है वो खुदा को रिप्रेजेंट करता है। यानी खुदा कहता है मैं इस हैकल के अंदर नहीं हूं, मैं इस जगह में नहीं रहता। बेशक आज हम देखते हैं कि बहुत सारी चर्चेस भरे पड़े हैं, लेकिन जो है वो लोगों की क्वालिटी खत्म हो चुकी है। क्वांटिटी बहुत ज्यादा, चर्चेस भरे हुए हैं, लेकिन अंदर से मरे हुए लोग हैं। और बनी इसराइल के कौम भी, लोग भी ऐसे ही थे, बेशुमार लोग, प्रस्तिश करने वाले, इबादत करने वाले और साज बजाने वाले और तरह तरह के काम करने वाले हैकल के अंदर। लेकिन खुदा कहता है कि मैं इस हैकल के अंदर नहीं हूं, मैं इस हैकल के अंदर नहीं हूं, मैं इस हैकल के अंदर नहीं हूं। क्योंकि कौम के लोगों के अंदर नाइंसाफी, यतीमों और बेवाओं और तरह तरह के खून रेजी, मुकद्दस हैकल के अंदर, मुकद्दस शहर यरूशलेम के अंदर लोग खुदा से दूर थे। और खुदा कहता कि बाबुल आने वाला है, तुम सजा पाओगे, तुम सजा पाओगे। इससे पहले उन्होंने मिस्रियों से दोस्ती कर ली। जब हम यिर्मयाह की किताब को पढ़ते हैं तो लिखा है कि लोगों ने जो है वो मिस्रियों के साथ दोस्ती कर ली। खुदा ने फिर वार्न किया, खुदा ने कहा ना करो ऐसा, ना करो। बुजुर्ग यिर्मयाह ने बार बार लोगों को कहा कि ना करो ऐसा, खुदा जो है वो तुम्हें सजा देगा, खुदा सजा देगा। लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी और बार बार लोग जो है वो खुदा के खिलाफ गुनाह करते थे। कलाम के अंदर जब हम यिर्मयाह की किताब और उसका 11वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर कौम की जो है वो अहद शिकनी नजर आती है। यिर्मयाह 11वां बाब जब हम उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदा के लोगों ने खुदा के अहद की जो है वो नाफरमानी की, अहद शिकनी की खुदा के हुजूर, नाफरमानी। और खुदा ने की, खुदा के लोगों ने जब की तो खुदा ने जो है फिर भी उनको माफ कर दिया। खुदा कहता कि मैं इनको माफ करूंगा, मैं इनको बहाल कर दूंगा। लेकिन लोग जो थे फिर बाज नहीं आते, फिर गुनाह करते हैं। और वो नाफरमानी ये थी खुदा की शरीयत, खुदा के कवानीन, खुदा के आइन, खुदा की बातों पर उन्होंने ध्यान लगाने की बजाय जो है वो खुदा के ज़ूर जो है वो बदी करना शुरू कर दी। और लिखा है कि खुदा जो है वो हम सबको माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन खुदा जो है वो गुनाह को कभी नहीं माफ करेगा। याद रखें, खुदा जरूर गुनाहगार को माफ करने के लिए तैयार है। हालेलुया।
खुदा गुनाहगार को माफ करने के लिए तैयार है, पर खुदा गुनाह की अदालत करेगा। एक वक्त आने वाला है कि गुनाह की अदालत होगी। अगर आज हम अपनी जिंदगियां लाइक तौर से, ये नहीं है, मैं नहीं ये कहता कि आप तौबा करो, पानी का बपतिस्मा लो, हाँ करना है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि हम मुस्तकिल तौर पर ईमान के अंदर, खुदा के अंदर और उसकी कलाम के अंदर, उसकी बातों के अंदर हमेशा बढ़ते रहें। ये है ईमान। मैंने जब अभी शुरू में क्या कहा, मैंने 2010 में खुदा यीशु मसीह को जो है वो शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल किया, तो मैं एक आम ईमानदार था। जब मैंने मैट्रिक की, याद रखें कि मुझे दुआ करनी नहीं आती थी। जब मैं चर्च में आया और फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने खुदा के कलाम को जब वो दिन ब दिन रिसीव करना शुरू कर दिया, और ये कलाम जो है वो उस वक्त आप रिसीव कर पाएंगे जब आपकी लगन। अभी जो भाई गीत गा रहे थे तौबा के ताल्लुक से, तो बड़ा अच्छा गीत है कि हमें जो है वो बपतिस्मा और तौबा के बाद भी अगर हम गुनाह करते हैं तो फिर उसकी सजा जो है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए खुदा का कलाम हमें वार्न करता है। लिखा है जब हम यिर्मयाह की किताब उसका 11वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदा उनको जो है वो अदालत के अंदर लेकर आएगा। एक एक की अदालत होने वाली है, वक्त आने वाला है। और एक और गुनाह कौम के अंदर आ गया। पहला गुनाह जो है वो चर्च ने किया, लोगों ने किया, बनी इस्राएल कौम ने किया, या हैकल के लोगों ने, उस वक्त हैकल के लोगों ने किया। और दूसरा गुनाह जो था वो नबियों ने किया, काहनों ने किया। ये गुनाह क्या था कि उन्होंने झूठी नबूवत की, उन्होंने झूठी बातें लोगों को बताई कि खुदा हमें ये कह रहा है, खुदा हमें ये कह रहा है। इसके बरक्स खुदा यिर्मयाह के साथ खुदा कलाम करता था कि यिर्मयाह मैं तो इनसे बोलता भी नहीं हूं, मैं तो इनके साथ कलाम नहीं करता। लोग कायन कहते हैं कि ये खुशी की खबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा कहता है कि बाबुल आने वाला है, असूरी आने वाले हैं, मिस्री चढ़ाई करेंगे और तुम्हें मारेंगे और तुम्हें रेदेंगे और तुम्हें ले जाएंगे। वो कहते हैं, काहन कहते हैं, नबी कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, नबी झूठी नबूवत करते हैं। फिर खुदा ने कलाम किया यिर्मयाह के साथ, फिर एक मर्तबा खुदा ने यिर्मयाह को कहा कि लोगों से क्या है, नबियों से क्या है, इन झूठे कायनों से क्या है कि खुदा जो है वो तुम्हें सजा देगा। और जब बुजुर्ग यिर्मयाह उनके पास जाता है तो कलाम के अंदर लिखा है कि वो उसका मजाका उड़ाते हैं। हालेलुया। आज भी लोग जो है वो खुदा के खादमों की बात नहीं सुन रहे। वक्त आने वाला है कि हम रैप्चर हो जाएंगे, हम उठाए जाएंगे, चर्च उठाया जाएगा, ईमानदार लोग उठाए जाएंगे। ये नहीं है हर एक दुआ करने वाला, हर एक चर्च आने वाला नहीं। वही लोग जिनकी लगन, जिनका ईमान और जिनकी खुदा के हुजूर जो है वो रास्तगी और बदन की जिंदगी जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, ताकि खुदा जब हवा में आए तो हम जो है उसमें उसका उठकर क्या करें, इस्तकबाल कर सकें। और हम देखते हैं कि बॉल जो है, जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, बुलंद आवाज से बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, नीचे आ जाती है। तो एक शख्स का वजन कितना होता है, 80। और भाई मकबूल जैसा, हालेलुया। मकसद क्या है कि आप चाहे वजन थोड़ा है या कम है, अगर बॉल ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आ जाती है। तो जब हम इतना बड़ा शख्स कैसे उड़ेगा, ये रूह कुदस की हजूरी होगी, ये रूह कुदस की प्रेजेंस होगी, ये रूह कुदस के पार होंगे, उनसे हम उड़ेंगे। लेकिन ये नहीं है। कलाम के अंदर लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। पहले कलाम से वाकिफ होना है, कलाम के साथ चलना है, कलाम में रहकर जिंदगी गुजारनी है, अपने खादमों के ताबे रहकर जिंदगी गुजारनी है। और खुदा जो है उसको अपने बाइबल के अंदर जिस तरह खुदा कहता है हमने दिन ब दिन उस तरह चलते जाना है। ये नहीं है कि हम ऊपर से हालेलुया हालेलुया करते रहें और हमारी जो अंदर जिंदगी है, इनर जिंदगी जो है वो बड़ी बेकार हो, बड़ी बुरी हो। और याद रखें कि हम उस वक्त कामिल हो सकते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, लेकिन उससे पहले हम कामिलियत के प्रोसेस में हैं। दिन ब दिन जो है वो हम आगे बढ़ते जाएंगे। और इसके बाद एक और गुनाह खुदा के लोगों ने किया। इसके बाद जब कौम के लोगों ने खुदा की बात नहीं सुनी, फिर वो नबियों के पास भेजा गया, काहिनों के पास भेजा गया, और इसके बाद वो बादशाह के पास भेजा गया। हालेलुया। जब बादशाह के पास बुजुर्ग यिर्मयाह जाता है
تو ہم 36ویں باب کے اندر پڑھتے ہیں کہ 5 بادشاہ جو ہے بزرگ یرمیہ کی خدمت میں 5 بادشاہ ہو گزرے ہیں. 5 بادشاہ جو تھے وہ اس وقت خدمت کا کام کر جو قوم کے لیے جو ہے وہ بادشاہت کر رہے تھے. اور لکھا ہے کہ جب آخری بادشاہ کے پاس جب بزرگ یرمیہ جاتا ہے تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ انگیٹھی کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ تاپ رہا تھا. اور جب اس کو بتایا گیا کہ یرمیہ باہر آیا ہے اور تمار لے کر آیا ہے تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس نے جب وہ تمار اس کے سامنے پیش کیا اور وہ پڑھا گیا تمار تو بادشاہ نے جو ہے وہ کہا کچھ نہیں ہوگا. اور اس نے وہ تمار پکڑے اور اسی انگیٹھی کے اندر ڈال دیے. اور خدا نے پھر بزرگ یرمیہ کے ساتھ اسی وقت کلام کیا. یاد رکھیں جو ہے نبی جو ہے اس کو خدا فریش رحمہ دیتا ہے, تازہ کلام دیتا ہے ہمیشہ. اور اسی وقت وہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے. خدا کہتا ہے اس بادشاہ کو کہہ دے کہ میں تجھے مار دوں گا. ہاللیلویا. خدا نے اس سے کہا کہ اس بادشاہ کو کہہ دے کہ میں تجھے مار دوں گا. اور کلام کے اندر لکھا ہے جب حنانیہ کاہن جو تھا اس نے اس کی بات نہ مانی, نبیوں نے بات نہ مانی, تو اس نے خدا نے جن جن لوگوں کے بارے میں کہا تھا اس کو بھی کہہ دے کہ تو بڑھ جائے گا. اور ایک مہینے کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ مر گئے. اور بادشاہ کے ساتھ جب اس نے کلام کیا تو سیم بادشاہ کے بھی ویسا ہی حال ہوا. بادشاہ کو اس نے کہا کہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ تیری لاش بھی اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا اور تیری لاش جو ہے وہ باہر پڑی رہے گی. اور وقت آنے والا ہے کہ تو توبہ کر لے, توبہ کر لے. اور جب ہم دیکھتے ہیں ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے نوح کی کتاب کے اندر, تو وہاں پر ہمیں اس قوم کی حالت نظر آتی ہے. جب ہم نوح کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت سے 1-2 آیتیں پڑھیں گے. لکھا ہے کہ اب ان کے چہرے سیاہی سے بھی کالے ہیں, وہ بازاروں میں پہچانے نہیں جاتے, ان کا چمڑا ہڈیوں سا سٹا ہے, وہ سوکھ کر لکڑی سا ہو گیا. تلوار سے قتل ہونے والے بھوکوں مرنے والوں سے بہتر ہے, کیونکہ یہ کھیت کا حاصل نہ ملنے سے کڑ کر ہلاک ہوتے ہیں. رحم دل عورتوں کے ہاتھ نے اپنے بچوں کو پکایا, میری دختر قوم کی تباہی میں وہی ان کی خوراک ہوئے. آمین. کتنے پیچیدہ لفظ لکھے ہوئے ہیں, کتنے افسردہ لفظ ہیں یہ. سب سے پہلے اوپر لکھا ہے کہ ان کے چہرے سیاہی سے بھی کالے ہیں. دنیا میں بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ مانا جاتا ہے کہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں, لیکن یہاں پر یہ بھی یرمیہ نبی کا نوحہ ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا, اب ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہی سے بھی کالے ہو گئے ہیں. ان کی رنگت جو ہے وہ بہت ہی غربت کی وجہ سے, فلاسی کی وجہ سے, کیونکہ بابل نے جو ہے وہ گھیراؤ کر لیا تھا یروشلم شہر کا. اور وہ باہر کھڑے تھے, وہ کہتے جب یہ پھاٹک کھولیں گے, جب یہ دروازے ہیں ہیکل کے, اور یہ ساری ہیکل ہے, ہیکل کے اندر یروشلم شہر کے اندر جو ہے انہوں نے بہت بڑے بڑے پھاٹک لگائے ہوئے تھے, دروازے لگائے ہوئے تھے تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو. بڑی دیر تک جو ہے بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ انتظار کرتے رہے کہ شاید بابل واپس چلے جائے, پر انہوں نے جو ہے وہ خدا کی طرف سے یہ تھا کہ وہ جو ہے ان پر چڑھائی کرے, کیونکہ لوگ اپنے گناہ میں مر رہے تھے. یہ نہیں ہے کہ خدا وہ خود آئے تھے, خدا نے ان کو بھیجا تھا, اور وہ گناہ کی وجہ سے, ان کی اپنی نافرمانی کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا. اور لکھا ہے کہ لوگوں کے چہرے جو ہے وہ سیاہی سے بھی زیادہ کالے ہو چکے تھے. کیوں؟ غربت کی وجہ سے. اندر لوگ جو تھے, اگر آپ کو ایک کمرے میں بند کر
पाप की वजह से, नाफरमानी की वजह से, खुदा से दूरी की वजह से। और जब हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं रोमियो की किताब और उसका 11वां बाब, तो वहां पर चर्च के लिए एक नसीहत लिखी हुई है। जब हम रोमियो 11वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर 21वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। आमीन। असली डालियां, और हमें जो है वो जंगली, इसे जब हम पूरे पैसेज को पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं बाद में भी, हमें जंगली जैतून कहा गया है। कलीसिया जो है वो जंगली जैतून है, लेकिन असल वो है हम पेवंदकारी करके जो है वो उस कौम के अंदर, उन लोगों के अंदर शामिल हैं। लेकिन लिखा है कि जब खुदा ने असल को ना छोड़ा तो वो तुझे भी ना छोड़ेगा। ये कलाम के अंदर लिखा हुआ है। हालेलुया। तो जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो अपने दिलों को सख्त ना करें, बल्कि खुदा के कलाम को मनोमन कबूल करें कि ये वक्त आने वाला है। जब हम अमाल की किताब को पढ़ते हैं उसके दूसरे बाब को, तो वहां पर लिखा हुआ है कि इससे पहले कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए, सूरज और चांद और खून हो जाएंगे और दुनिया के अंदर जो है वो बड़ी बदी होगी। और लिखा है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। वक्त आने वाला, दुनिया में बड़ी बदी जो है, गुनाह जो है बड़ी तेजी से फैल रहा है। लेकिन हम खुदा के लोग हैं, हमें ज्यादा खुदा के पास आने की, ज्यादा दुआ करने की जरूरत है और ज्यादा खुदा से मांगने की जरूरत है कि खुदावन हमें इस मुश्किल के अंदर, ये बड़ी मुश्किल का दौर है, तो खुदा हमें हिफ्ज़ ईमान के अंदर है खुदावन, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं, हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर लें। जब कलाम के अंदर लिखा है कि हबशी खोजा के पास फिलिप्पस को भेजा गया, तो फिलिप्पस जब उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तू क्या पढ़ रहा है, और जब उसने बताया कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, उसने कहा कि ये जो तू पढ़ता है उसको समझता भी है? उसने कहा नहीं। फिर कलाम के अंदर लिखा है कि फिलिप्पस ने उसी निविष्ठा से शुरू करके, यानी खुदावन यीशु मसीह की खुशखबरी दी, वो मर गया था अब वो जिंदा है, और जब उसने ये कलाम, ये मनादी उसके साथ की, तो उसने फौरन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया। वक्त है हम भी जब खुदा के कलाम को सुनते हैं तो उसे कबूल करें। और लिखा है कि फिलिप्पस ने नहीं बल्कि हबशी खोजा ने खुद कहा कि पानी मौजूद है, तो मुझे बपतिस्मा दे। और जब हम खुद इकरार करेंगे, किसी पास्टर के कहने पर नहीं, या मेरे कहने पर नहीं, या भाई साहब के कहने पर नहीं, खुद आपने ये फैसला करना है कि खुदावंद मेरी जिंदगी के अंदर कमियां हैं, खुदावंद मेरी जिंदगी के अंदर कमजोरियां हैं, खुदावंद मैंने गुनाह किया है, लेकिन खुदावंद तू माफ करता है, तू बहाल करता है, खुदा फिर भी माफ कर देता है। जब हम खुदा के ज़ूर वापस आते हैं, और कलाम के अंदर मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है कि गुनाह चाहे कितना भी किरमजी क्यों ना हो, खुदा माफ कर देता है और बर्फ की मानत जो है वो ओझल कर देता है। इसलिए कलाम के अंदर लिखा है कि वो कामिल दुल्हन को लेने आ रहा है, जिसके अंदर दाग नहीं है, जिसके अंदर जुरी नहीं है, वो कामिल दुल्हन को लेने आ रहा है। चर्च, कलीसिया, उसके लोग जो हैं वो चुने हुए हैं। और हम जाते हैं शादियों पर, ब्याहों पर जाते हैं, तो दुल्हन जो होती है वो सबसे आरास्ता होती है। हालेलुया। वो सबसे अलग उसने ड्रेस पहना होता है। सेम इसी तरह खुदा की दुल्हन जो है, खुदा की कलीसिया जो है, वो दुनिया से अलग होनी चाहिए, वो दुनिया से अलहदा होनी चाहिए, और उसके अंदर से यीशु नजर आना चाहिए, उसके अंदर उसकी अलूहियत नजर आनी चाहिए, चाहे वो बदन के अंदर है, चाहे रूह के अंदर है। चंद दिन पहले मैं एक फौतगी पे गया, तो भाई साहब ने वहां पर एक बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि कितने लोग हैं जो यीशु, जब उसने कलाम का अख्ताम किया तो उसने पूछा कि कितने लोग यीशु के लिए मरना चाहते हैं, तो सबने अपने हाथ फौरन खड़े कर ली कि मैं यीशु के लिए, यीशु में मरना चाहता हूँ। उसने कहा कि कितने लोग हैं जो यीशु के लिए जीना चाहते हैं। ये बड़ी अहम बात थी जो मेरे सीखने के लिए थी। वाकई हम मरना तो हर एक की ये ख्वाहिश है कि मैं यीशु के लिए मरूं, यीशु में मरूं, मेरी तारीफ की जाए, कहा जाए कि ये बहुत बहन अच्छी थी, ये भाई बहुत अच्छा था, ये दुआ गो था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। लेकिन कलाम के अंदर हमें बेशुमार वादे मिलते हैं कि जो मुबारक है वो मुर्दे जो मसीह में मरते हैं। मरने में फ़र्क है। उसने कहा कि यीशु के लिए कितने जीना चाहते हैं। हालेलुया।
जीना थोड़ा मुश्किल है, उसमें क्राइसिस में से गुजरना पड़ेगा, मिसाइल में से गुजरना पड़ेगा। जिस तरह खुदा कहता है उन मिसाइल में से आपको गुजरना पड़ेगा, लेकिन हमें वहां पर कलाम के अंदर लिखा है कि ये रास्ता तो सुखड़ा है पर ये रास्ता जिंदगी की तरफ जाता है। ये रास्ता जो है वो हमेशा की जिंदगी की तरफ हमें लेकर जाएगा। आज हमारे पास वक्त है, ये आफ्टर कॉल आपके लिए है। अगर हमने यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा अभी तक कबूल नहीं किया तो कबूल करने की जरूरत है। बेशुमार हो सकता है बहुत सारे लोगों ने तौबा की हो, पानी का बपतिस्मा लिया हो, आपने शख्सी तौर पर यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी के अंदर अभी भी कमज़ोरियाँ हो, कमियाँ हो। लेकिन वक़्त है आज हमारे पास, जब आपके पास कलाम पहुंच जाता है तो समझ लें आपके पास वक़्त होता है कि आप खुदा की हजूरी में इकरार करें। कलाम के अंदर लिखा है गुनाह चाहे जितना मर्जी भी किरमजी क्यों ना, वो बर्फ की माने ओझल हो जाएगा। ये खुदा का कलाम कहता है, मैं नहीं कह रहा। आज हमारे पास वक़्त है, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावन की हजूरी को महसूस करेंगे और उससे कहेंगे खुदावन तू अपने कलाम के जरिए से खुदावंदा मेरे साथ बोला है खुदावन। हालेलुया हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करें और जितने लोग खुदावन जिन्होंने आज खुदावन की आवाज़ को सुना है, यकीनन खुदावन के लोगों अपने दिलों को सख्त ना करें, अपने खुदा को, अपने शख्सी निजात दहिंदा को अपनी ज़िंदगी में ले लें और दिल से उसको कबूल करें। ना रस्मी इबादत करें, रस्मी और शरीयत से आज़ाद होकर दिल से खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले लें। हालेलुया। बरबर के खालिक मालिक खुदावन पाक खुदा, मैं तेरे इन लोगों के लिए खुदा तेरा दास होते हो, तेरा खादम होते हो खुदा दुआ मांगता हूँ तमाम बहनों के लिए, तमाम भाइयों के लिए खुदा जिन लोगों तक तेरी आवाज़ पहुँची है खुदा हम मुंह से है खुदा कहने वाले नहीं बल्कि दिल से ईमान के साथ खुदा तुझे कबूल करने वाले बन जाएं। और खुदावन हम तेरे लोगों की तरह खुदावंदा जो वापस आए खुदावंदा और तूने उनको बहाल कर दिया खुदावन, आज हमें भी खुदावन तूने खुदावंदा अपने लोगों में शामिल कर लिया है खुदावंदा। बेशक खुदावंदा तूने अपने कलाम के अंदर फरमाया है जब मैं असली डाली को नहीं छोड़ता तो तुझे भी ना छोड़ूंगा खुदावंदा। हर एक की अदालत होने वाली है खुदावंदा। खुदावन तू हर एक को नजात दे सकता है खुदावन, ये तेरा कलाम हमें सिखाता है खुदावंदा। खुदावन तू तुखमी और खुदावन मरसी गुनाहों से पाक है, इसलिए खुदावन हमारा ईमान भरोसा तवक्कल है खुदावंदा कि तू हमेशा की ज़िंदगी में खुदावंदा हम सबको दाखिल करेगा। खुदावंद फजल बख्श दे जिन लोगों ने तेरे कलाम को सुना है खुदावंदा, ये खुदावंद कलाम इनके दिलों में और इनके दिल की तख्तियों पर खुदावंदा नक्शीन हो जाए और तेरे लोग बरकत पाएं और यीशु नाम को इज्जत और जलाल मिले, मसीह यीशु के नाम से आमीन।